करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच जपजी साहिब एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोच सोच न हो बई जे सोची लखवार चुपे चुप ना हो बई जे लाए भुखिया भुख न उतरी जे पन्ना पुरी बोलो सैसियापा लख होए एक न चले नाम सजियारा होई एक कूड़े टुट हुक्म जाई चलना नानक लिखिया हुक्मे होवना कार हुक्म ना कहया जाई हुक्मे होवण जी हुक्म मिले वड़ियाई हुक्मे उत्तम रीज हुक्म लिख दुख सुख पाइए एक ना हुक्मी बख्शीश एक हुक्मी सदा भवाइए हुक्मे अंदर सबको बार हुक्म न कोई नानक हुक्मे दे बुझे ता होमे कहे न कोई गावे को तान होवे किसे तान गावे को दास जाने गावे को गुण वड्याइयां चार गावे को विद्या गावे को साज करे तन गावे को जीर गावे को जपे दिसे गावे को वेखे हादरा कदना कदी ना आवे कद कद कदी कोड़ी कोड़ को जिंदा दे लेंदे तक जुगा जुगंतर खाई हुक्मी हुक्म चला हेरा नानक विकसे बेपरवाह सहब साच नाए वाहिगुरु भाख्या भाव अपार आखे मंगे दे दे दात करे दाता फेर के अगे रखिए जित से दरबार मोह के बोलन बोलिए जिसु धरे प्यार अमृत वेला सजना बढ़ियाई विचार गर्मी आवे कपड़ा नगरी मोह द्वार नानक में जानिए सब आपे सजिया आपे न जाए कीता न होए आपे जिनसे व्यातन पाया मन नानक कबिए गुणी गाविए सुनिए मन रखिए भाव दुख पर हर सु कर ले गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रया समाई गुर ईश्वर गुर गोरख ब्रह्म गुर पार भक्ति माई जे हो जाना अखा नाई कहना कदन न जाई गुराक दे बुझाई सवना जिया गायक दाता सो में विसर न जाई तीर्थ नावा जित भावा भिण भाणे की नाई जेती सिद्धि उपाई वेखा भिण कर्मा के मिले मत विज रतन जवाहर माणिक जेत गुर की से गुराक दे बुझाई
ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ। ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਅਰਜਾ ਔਰ ਦਸੋਣੀ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵਿੰਜਾਣੀ ਨਾਲ ਚਲੇ ਸਭ ਕੋਏ ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਰਖਾਏ ਕੇ ਜਸ ਕੀ ਰਜ ਜਗਲੇ। ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵਈ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨ ਪੁੱਛੇ ਕੇ ਕੀਟਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸੀ ਦੋਸਤ ਰੇ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਗੁਣ ਦੇ। ਦੇਹਾ ਕੋਏ ਨ ਸੁਝਈ ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਬਚੇ। ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਵੀਰ ਸੁਰਨਾਰ ਸੁਣਿਆ ਧਰਤ ਧਵਲ ਆਕਾਸ਼। ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਲੋਕ ਪਾਤਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕੋਏ ਨ ਸਕੇ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਧੂਪ ਪਾਪ। ਸੁਣਿਆ ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸੁਣਿਆ ਮੋਕਸ਼ ਸਲਾਹਣ। ਸੁਣਿਆ ਜੋਗ ਜਗਤਨ ਸੁਣਿਆ ਸਾਧ ਸਿਮਰਤ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਧੂਪ ਪਾਪ। ਸੁਣਿਆ ਸਤਿਸੰਗ ਗਿਆਨ ਸੁਣਿਆ 68 ਕਾਹੇ। ਸੁਣਿਆ ਪੜ ਪੜ ਪਾਵੇ ਮਾਨ ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੇ ਸਹਿ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਧੂਪ ਪਾਪ। ਸੁਣਿਆ ਸਰਾਂ ਗੁਣਾ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਸੇਖ ਪੀ ਪਾਸ਼ਾ। ਸੁਣਿਆ ਅੰਦਰ ਪਾਵੇ ਰਵ ਸੁਣਿਆ ਹਾਥ ਹੋਵੇ ਰਸਤਾ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਧੂਪ ਪਾਪ। ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਏ ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਕਹੇ ਕਹੇ। ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਨ ਲਿਖਣ ਮੰਨੇ ਕਾਪੈ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਰਿੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਇ। ਮੰਨੇ ਸੁਰਤ ਹੋਵੇ ਮਨ ਬੁੱਧ ਮੰਨੇ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸੁਧ। ਮੰਨੇ ਮੋਜੋ ਟਨ ਮੰਨੇ ਜਾਉ ਕੇ ਸਾਧ ਜਾਏ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਰਿੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਇ। ਮੰਨੇ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨ ਪਾਏ ਮੰਨੇ ਪਾਸਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ। ਮੰਨੇ ਮਗ ਨ ਚੱਲੇ ਮੰਨੇ ਧਰਮ ਸਿਧੀ ਸੰਪਤ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਰਿੰਜਨ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ। ਮੰਨੇ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਮੰਨੇ ਪਰਵਾਰੇ ਸਾਰਾ। ਮੰਨੇ ਤਰੇ ਤਾਰੇ ਗੁਰ ਮੰਨੇ ਨਾਨਕ ਭਾਵੇ ਨ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਰਿੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਇ। ਪੰਜ ਪਰਵਾਨ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਚੇ ਪਾਵੈ ਦਰਗੇ ਮਾਨ। ਪੰਚੇ ਸੋਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਕੇ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ। ਔਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਕੋ ਸੰਤੋਖ ਧਾਵ ਰਖਿਆ। ਜੇ ਕੋ ਪੁਜ ਹੋਵੇ ਸਚਿਆਰ ਧੌਲੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ। ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੇ ਵਰ ਹੋਰ ਤਿਸਤੇ ਭਾਰ ਤਲੇ ਗੁਣ। ਕੀ ਜਾਂਦ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਮ ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬੁੜੀ। ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੇ ਕੋਏ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੀਤਾ ਹੋਏ। ਕੀਤਾ ਤਾਣ ਸਵਾਲਿਓ ਦੂਰ ਖੇਤੀ ਦਾ ਜਾਣੇ ਕੋ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲਹਦੇ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾਂਗੇ ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਸਹੀ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ। ਸੰਤ ਜਪ ਸੰਤ ਭਾਉ ਸੰਤ ਪੂਜਾ ਸੰਤ ਸੰਗ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ। ਸੰਗ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹੇ ਉਦਾਸ ਸੰਗ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਚਾਰ। ਸੰਗ ਸਤੀ ਸੰਗ ਦਾਤਾ ਸੰਗ ਸੂਰਮਾ ਭਗਤ ਸਾਰ। ਸੰਗ ਮੋਲ ਲਗਾਏ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ। ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਸਹੀ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ। ਸੰਤ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ ਸੰਤ ਚੋਰ ਹਰਾਮ। ਸੰਤ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਏ ਸੰਤ ਗਲਵਟ ਫਤਿਆ ਕਮਾਏ। ਸੰਤ ਪਾਪੀ ਪਾਗਲ ਸੰਗ ਕੁੜਿਆਰ ਕੁੜੇ ਫਿਰ। ਸੰਗ ਮਲੇ ਮਲ ਭਗਤ ਸੰਗ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰੇ ਪਾਰ। ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੇ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਸਹੀ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ। ਸੰਤ ਨਾਮ ਸੰਤ ਨਾਮ ਨਾਮ ਸੰਖ ਲੋ ਸੰਤ ਹੈ ਸਿਰ ਭਾਰ। ਹਰੀ ਨਾਮ ਖਰੀ ਸਾਰਾ ਅਖੜੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣਦਾ। ਅਖੜੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ ਅਖਰਾ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ। ਜਿਨੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਸਰਨਾਏ ਜੇ ਫਰਮਾਏ ਤੇ ਪਾਏ। ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਮ ਮਿਲਣਾ ਵੇ ਨਾਹੀ ਕੋ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਸਹੀ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਗ। ਭਰੀਏ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤੰਦੇ ਪਾਣੀ ਧੋਤੇ ਉਤਰੇ। ਮੂਰ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਧੋਏ ਦੇ ਸਾਬਣ ਲਈਏ ਲੋਤੇ। ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾ ਕੇ ਸੰਗ ਧੋ ਧੋਪੇ ਨਾ ਵੇਖੇ। ਊਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾ ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾ। ਆਪੇ
ਪੀ ਜਾਪੇ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵੋ ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਿਆ ਦਦਨਾ ਏਕੋ ਭਾਵੇ ਤਿਲਕਾ ਸੁਣਿਆ ਮਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਵ ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਨਾ ਸਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ ਸਵਾਸ ਆਤਮਾਣੀ ਬਰਮਾਉ ਸਤ ਸੁਆਣ ਸਦਾ ਮਨ ਦਾ ਅਵਣ ਸਵੇਲਾ ਵਕਤ ਕਮਣ ਅਵਣ ਗਤ ਕਮਣ ਵਾ ਅਵਣ ਸੁਰਤੀ ਮਾ ਕਮਣ ਜਿਤ ਹੋਵਾਇਆ ਕਾ ਵੇਲ ਨ ਪਾਇਆ ਬਣਤੇ ਜੇ ਹੋਵੇ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ ਵਕਤ ਨ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ ਜੇ ਲਿਖਣ ਲੇਖ ਰਾਣ ਜਦਵਾਰ ਨ ਜੋਗੀ ਜਾਣੇ ਰੋਕਮਾ ਨ ਕੋਏ ਜਾ ਕਰਤਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੋ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਸੋਏ ਕਿਵ ਕਾ ਰਾਖਾ ਕਿਵ ਸਲਾਈ ਕਿਉ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਏਕੋ ਏਕ ਸਿਆਣਾ ਵੱਡਾ ਸਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪੋ ਜਾਣੇ ਅਗੇ ਗਿਆ ਨਾ ਸੋਏ ਪਾਤਾਲ ਨਾ ਪਾਤਾਲ ਲਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾ ਕੋੜ ਕੋੜ ਭਾਲ ਥਕੇ ਵੇਦ ਕਹਿ ਨਿਕਲਾ ਸਹਿ 18 ਕਹਿ ਕਤੇ ਬਾਸ ਲੂ ਵੇਖਤਾ ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਏ ਲੇਖੇ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਏ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪ ਸਾਲਾ ਈ ਸਾਲਾ ਏਤੀ ਸੁਰਤ ਨ ਪਾਈਆਂ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਵਾਹ ਪਵੇ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਜਾਣੀ ਸਮੁੰਦ ਸਾ ਸੁਲਤਾਨ ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਲ ਧਨ ਕੀੜੀ ਤੋਲ ਨਾ ਹੋਵਨੀ ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨ ਵਿਸਰੇ ਅੰਤ ਨ ਸਿਰਤੀ ਕਹਿਣ ਅੰਤ ਨ ਕਰਨੇ ਦੇਣ ਅੰਤ ਨ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੇ ਕਿਆ ਮਨ ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੇ ਕੀਤਾ ਕਾਰ ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੇ ਦੇ ਬਿਰਲਾਏ ਤਾਕੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਏ ਜਾਏ ਇਹੋ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੇ ਕੋਏ ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ ਵੱਡਾ ਸਹਿਬ ਉੱਚਾ ਨਾ ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾ ਇਹ ਵੱਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਏ ਉੱਚੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਸੋਏ ਇਹ ਵੱਡਾ ਜਾਣੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਕਿਤੇ ਮੰਗੇ ਜੋਦ ਪਾਰ ਕਿਤਿਆਂ ਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਿਤੇ ਖੱਪ ਟੁੱਟੇ ਵੇਕਾਰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਕਿਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਈ ਕਿਤਿਆਂ ਦੁਖੂ ਸਰਮਾਇਆ ਰੇ ਪੀਦਾ ਤੇਰੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਬਾਣੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਆਖ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਈ ਜੇ ਕੋ ਖਾਈ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਏ ਉਹ ਜਾਣੇ ਜਿਤਿਆਂ ਮੁਰ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪੇ ਦੇ ਆਖੇ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਵਸਲਾ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਮੁੱਲ ਗੁਣ ਮੁੱਲ ਵਪਾਰੀਏ ਅਮੋਲਾ ਵੈ ਅਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਏ ਮੁੱਲ ਭਾਏ ਗਮਲਾ ਮੁੱਲ ਧਰਮ ਮੁੱਲ ਦੀਵਾਨ ਮੁੱਲ ਤੁਲ ਮੁੱਲ ਪਰਮਾਨ ਮੁੱਲ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਮੁੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੁੱਲ ਕਰਮ ਅਮੁੱਲ ਫਰਮਾਨ ਮੁੱਲੋ ਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਆਖੇ ਵੇਦ ਪਾਠ ਆਖੇ ਪੜੇ ਕਰੇ ਵਖਿਆਨ ਆਖੇ ਬਰਮੇ ਆਖੇ ਇੰਦ ਆਖੇ ਗੋਪੀ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਆਖੇ ਈਸ਼ਵਰ ਆਖੇ ਸਿੱਧ ਆਖੇ ਕੀਤੇ ਕੀਤੇ ਆਖੇ ਨਾਨਮ ਆਖੇ ਦੇਵ ਆਖੇ ਸੁਰਨਨ ਮੁੰਨ ਕੀਤੇ ਆਖੇ ਆਖਣ ਪਾਏ ਕੀਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉੱਠ ਕੀਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਖ ਨਾ ਸਕੇ ਦੇਵੜ ਭਾਵੇ ਦੇਵੜ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਜਾਣੇ ਸੱਚ ਜੇ ਕੋ ਆਖੇ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜਦਾ ਲਿਖੀਏ ਸਿਰਕਾ ਵਾਰਾ ਸੋ ਦਰ ਕੇ ਹਾ ਸੋ ਕਰਕੇ ਹਾ ਜਿਤ ਗੈ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ ਬਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਸੰਖਾਂ ਕੀਤੇ ਬਾਵਣ ਹਾਰੇ ਕੀਤੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸਿਉ ਕਈਏ ਕੀਤੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ ਗਾਵੇ ਤੋਨੋ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ ਗਾਵੇ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣੇ ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ ਗਾਵੇ ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਮ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ ਗਾਵੇ ਇੰਦਰ ਰਾਸਨ ਗੜ ਦੇਵਤਿਆ ਧਰਮਾਲੇ ਗਾਵੇ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ ਗਾਵਣ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ ਗਾਵਣ ਜਤੀ ਸਦੀ ਸੰਦੋਖੀ ਗਾਵੇ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ ਗਾਵਣ ਪੰਡਤ ਪੜਨ ਰਖੀ ਸਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ ਗਾਵੇ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਣ ਸੁਰਗ ਮਛ ਪਿਆਲੇ ਗਾਵਣ ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਤੇਰੇ 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ ਗਾਵੇ ਜੋਤ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ ਗਾਵੇ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ ਗਾਵੇ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਪੰਡਾ ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਧਾਰੇ ਸੇ ਤੁਨੋ ਗਾਵੇ ਜੋ ਤੁਧ ਪਾਵਨ ਰਤਰ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਗਾਵਣ ਸੇ ਮੈਂ ਚੇਤਨਾ ਆਮਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ
सोई सोई सदा सच सहब साचा साची नाई। है भी होसी जाए न जासी रचना जन रचाई। रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी माया जने हो पाई। कर कर वेखे कीता अपना जिव तिस दी वड्याई। जो तिस भावे सोई कर से हुक्म न करना जाए। सो पाशाह साहब साहब नानक रैन जाई। मुंदा संतोख सरम पचोली ध्यान की करन जो। खिंता काल कुआरी काया जो ठंडा परती। आई पंथी सगल जमाती मन जीते जगती। आदेश से आदेश आद नील अनाथ अनाहत जुग जुग एको वेश। भुगत ज्ञान दया भंडारण घड़ घड़ वांझे नाथ। आवनाथ नाती सब जाकी रिस जवरा साथ। संजोग योग कार चलावे लेखे आवे पाठ। आदेश से आदेश आद नील अनाथ अनाहत जुग जुग एको वेश। एक माई जुग व्याई दिन जेले परवान। एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान। जित भावे तवे चलावे जो होवे फुरमान। हो वेखे ओना नजर न आवे बहुता एवं। आदेश से आदेश आदनी अनाथ अनाथ जुग जुग एको वेश। आसन लोए लोए भंडार जो बिन पाया सोए का। कर कर वेखे सज्जन भार नानक सच्चे की साची का। आदेश से आदेश आद नील अनाथ अनाहत जुग जुग एको वेश। एक दूजी बो लखो वे लगी। लाला गेड़ा आखिए एक नाम जलगी। एक रापद पौड़िया चढ़िए हुए सुन गल्ला आकाश की। नानक नदरी पाई है कूड़े कूड़े। आखण जोर च बहन जोर। जोर मंगण देड़ न जोर। जोर न जीवन मरण न जोर। जोर न राजमाल मनसो। जोर न सुरती ज्ञान विचार। जोर न ज्योति हृदय संसार। जिसा जोर कर वेख सोए नानक उत्तम नीच न कोय। रात्रि रात्रि रोती तित्ती वार पौन पानी अग्नि पत्ता। तिसवे धरती धाम रही तरसार। तिसवे जी जुगत के जिनके नाम अनेक नाम। कर्मी कर्मी होए विचार। सच्चा आप सच्चा दरबार। जिते सोन पन परवान। नदी कर्म पाए निशान। कच पकाई उत्ते पाई। नानक आज्ञा पे जाए। धर्म खंड काए वो धर्म। ज्ञान खंड का वो कर्म। केते पवन पानी वै संतर। केते कान महेश। केते पर में काढ़ कड़िए रूप रंग के वेश। केतियां कर्म भूमि मेर केते केते तू उपदेश। केते इंद जन सुर केते केते मंडल देश। केते सदगुरुनाथ केते केते देवी वेश। केते देव नारायण केते केते रत्न समुद्र। केतिया खाणी केतिया बाणी केते पाल नरेंद्र। केतिया सुरती सेवक केते नानक अंतनाथ। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तित नाथ मनोज कोड। सर्व खंड की वाणी रूप ते घाट घड़िए बो। नाकियां गलां कथियां न जाए जेको कहे विजय। तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध। तिथे घड़िए सुरा सदा की सुध। कर्म खंड की वाणी जो तिथे होर न कोई। तिथे जोर में राम लिया पर। सीतो सीता में माए। ताके रूप न बदले जाए। नाव मरे न ढाके जाए। जिनके राम से मन माए। तिथे भगत वसे के लोए। दया सच्चा मन सोए। सच खंड वसे नरकार। कर कर वेखे नजर मिलाल। तिथे खंड मंडल वर खंड। देखो कथे तंत्र मंत्र। तिथे लोय लोय आकार। जिव जिव हुक्म जड़े दिलकार। देखे विकसे कर विचार। नानक रत्ना करड़ा का। जप हारा धीरज सुनिया। नैरण मत बहु खला गंतवता। भांडा भव अमृत कड़िए सब सजी। जिन को नदर करम तिन का। नानक नदरी नजर निहार। जिनको नदर करम तिनकार। नानक नदरी नजर निहार। सलोक पवन गुरु पाणी पिता। माता दर्त महत। पवन गुरु पाणी
पिता माता धरत महात दिवस रात तोय दाई दाया खेले सगर जगत जंगियां बुराइयां बोलो आज धर्म दूर कर्मी आपो अपनी गुरमुख बोलो नाम ते आया जिनी नाम ते आया नाम ते आया जिनी नाम ते आया नाम ते आया जिनी जिनी नाम ते आया गए मुश्किल काल उजले खेती छुट्टी नाल जिनी नाम ते आया मुश्किल काल उजले खेती छुट्टी नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह। जय माता दी जय माता दी। से महारानी द्वार तेरे रंग बरसे महारानी शेरवालिए जोतावालिए सबकी माँ भरे झोलियाँ महारानी शेरवालिए मेहरवालिए लाल चुनरी चढ़ाऊं लाल चूड़ियां हे माँ लाल चुनरी चढ़ाऊं लाल चूड़ियां मेहंदी लगाऊं हाथों पे शेरावाली मेहंदी लगाऊं हाथों पे शेरावाली
लाटा वालिए मैया तेरे मंदिरों में लाटा वालिए। चाँद धरती सितारों में तू है, बास तेरा कण कण में अम्बे रानी, बास तेरा कण कण में अम्बे रानी। फरियाद सुनो जी महारानी, चरणों का प्यार दे दो महारानी। शेरा वालिए लोटा वालिए पहाड़ा वालिए, शेरा वालिए शेरा वालिए लोटा वालिए पहाड़ा वालिए, शेरा वालिए दुर्गा कालिए शेरा वालिए। सारे बोलो जय माता की, प्रेम से बोलो जय माता की, मिलके बोलो जय माता की, जोर से बोलो जय माता की। जयकारा शेरों वाली का, साचे दरबार की जय। पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा भगता, जय माता की करता जा भगता। पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा भगता, जय माता की करता जा भगता। ऊंचे पर्वतों की चढ़ लो चढ़ाई भगतों, सुंदर गुफा में विराजे महामाई भगतों। ऊंचे पर्वतों की चढ़ लो चढ़ाई भगतों, सुंदर गुफा में विराजे महामाई भगतों। पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा भगता, जय माता की करता जा भगता। पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा भगता, जय माता की करता जा भगता। सकड़ा से चल दर्शन द्वार से आगे कदम बढ़ा लो, बाण गंगा के शीतल जल में डुबकी एक लगा लो। डुबकी एक लगा लो, डुबकी एक लगा लो, डुबकी एक लगा लो, डुबकी एक लगा लो। चरण पादुका मंदिर में भी झुक कर माथा टेको, आदि कुंवारी गर्भ जून का भाव से जलवा देखो। भाव से जलवा देखो, भाव से जलवा देखो, भाव से जलवा देखो, भाव से जलवा देखो। रुत अम्बे माँ के दर्शनों की आई भगतों, सुंदर गुफा में विराजे महामाई भगतों। रुत अम्बे माँ के दर्शनों की आई भगतों, सुंदर गुफा में विराजे महामाई
सच्ची भावना की कर लो कमाई भगतो, सुंदर गुफा में विराजे महामाई भगतो। पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा भगता, जय माता की करता जा भगता। पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा भगता, जय माता की करता जा भगता। सबकी है यहाँ सुनवाई भगतो, सुंदर गुफा में विराजे महामाई भगतो। होती सबकी है यहाँ सुनवाई भगतो, सुंदर गुफा में विराजे महामाई भगतो। पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा भगता, जय माता की करता जा भगता। पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा भगता, जय माता की करता जा भगता। धरती बोले जय माता की, अंबर बोले जय माता की, पर्वत बोले जय माता की, नदियाँ बोले जय माता की, पवन भी बोले जय माता की, झरना बोले जय माता की, मैं भी बोलूं जय माता की, तुम भी बोलो जय माता की। जयकारा शेरों वाली जयकारा पहाड़ों वाली सिंहासनगता नित्यं पद्माश्रितकरत्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी। जो नित्य सिंह पर विराजमान है और अपने दोनों हाथों में कमल पुष्प धारण करती हैं, वे यशस्विनी स्कंद माता दुर्गा देवी हमेशा हमारा कल्याण करना। हरे कृष्ण। शारदीय नवरात्रि के पावन दिनों में माँ दुर्गा के भिन्न भिन्न स्वरूप की आराधना करते हुए आज हम नवरात्रि के 5वें दिन पर पहुँच गए हैं। प्रथम नवरात्रि को देवी शैलपुत्री, द्वितीय दिन देवी ब्रह्मचारिणी, तृतीय दिन देवी चंद्रघंटा और चतुर्थ दिन देवी कुष्मांडा तथा 5वें दिन देवी स्कंद माता की पूजा की जाती है। आज नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप माँ स्कंद माता की उपासना की जानी चाहिए। स्कंद कुमार यानी कि कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। माता का स्वरूप अत्यंत ममतामय है। उनकी गोद में भगवान स्कंद बाल रूप में विराजित हैं। देवी की 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से माता स्कंद को गोद में लिए हुए हैं और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प सुशोभित है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। उनका वर्ण श्वेत है और वे स्वयं कमल के आसन पर विराजमान हैं, इसलिए उन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। माँ स्कंद माता को गौरी, माहेश्वरी, पार्वती और उमा नाम से भी जाना जाता है। माँ का वाहन सिंह है। माँ दुर्गा का ये स्वरूप ममता की मूर्त माना जाता है। उनकी गोद में भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय स्वामी विराजित रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि स्कंद माता की श्रद्धा पूर्वक पूजा आराधना करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और आपके संतान की हर दुष्प्रभाव से स्कंद माता रक्षा भी करती हैं।
जो निसंतान दंपति हैं, उन्हें आज के दिन स्कंद माता की विशेष पूजा आराधना करनी चाहिए और उनसे संतान सुख प्राप्ति की कामना करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं कि स्कंद माता की पूजा विधि और महत्व क्या है। नवरात्रि के 5वें दिन भी हर रोज की तरह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से स्वच्छ हो जाइए, स्वच्छ वस्त्र धारण करिए और फिर घर और पूजा के स्थान को गंगा जल या गौमूत्र से शुद्ध कर लें। उसके बाद कलश की स्थापना की है तो वहाँ जाकर पूजन करें। उसे फूल, सुगंधित द्रव्य, अबील, गुलाल, सिंदूर, अक्षत इत्यादि से पूजा करें। फिर माँ का भी इसी प्रकार पूजन करें, श्रृंगार करें। पूजा में फल, फूल, मिठाई, लौंग, इलायची, सिंदूर, अक्षत, धूप, दीप और केले का फल अर्पित करें। माँ की आरती और स्तुति करें। फिर स्वादिष्ट व्यंजन और पकवान का भोग अर्पित करें और स्कंद माता से अपने संतान की रक्षा हेतु प्रार्थना करें। यदि संतान प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं तो उन्हें संतान सुख की याचना करें और विशेषकर अपने तथा अपने परिवार जनों के लिए कृष्ण भक्ति की याचना अवश्य करें। तत्पश्चात प्रसाद वितरण करें और इस प्रकार संपूर्ण विधि विधान पूर्वक अपनी पूजा संपन्न करें। नवरात्रि की 5वीं तिथि की अधिष्ठात्री देवी स्कंद माता है, इसलिए अगर किसी व्यक्ति को संतान का अभाव हो तो स्कंद माता की पूजा आराधना करके इस मंत्र का जप करना चाहिए। ओम स्कंद मात्रे नमः। चलिए अब ये भी देख लेते हैं कि माँ दुर्गा को स्कंद माता क्यों कहा जाता है। इसके पीछे की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। इसका वर्णन हमें शिव पुराण से मिलता है। ये उस समय की बात है जब ताड़कासुर नामक एक दैत्य का अत्याचार अत्यंत बढ़ने लगा था। ताड़कासुर की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये भी एक बड़ी रोचक कथा है। तो एक समय ऋषि मरीचि के पुत्र ऋषि कश्यप, जिन्हें 13 पत्नियां थी और वे सभी प्रजापति दक्ष की पुत्रियां थीं। उनमें से सबसे बड़ी पुत्री का नाम था दीति, जिनके पुत्र हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, इन दोनों का वध श्री हरि नारायण ने नरसिम्हा अवतार और वराह अवतार में किया था। इसलिए दीति ने फिर से अपने पति से एक पुत्र की मांग की और तब ऋषि कश्यप ने दीति से कहा कि ब्रह्मा जी की तपस्या करके वो पुत्र की प्राप्ति कर सकती है। अपने पति की बात मानकर दीति ने ऐसा ही किया। उनकी तपस्या के कारण ब्रह्मा जी के वरदान से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम वज्रांग था और वो अत्यंत बलशाली और पराक्रमी था। उसने अपने बल से इंद्र को भी परास्त कर दिया और उन सबको बंदी बना लिया था। लेकिन ब्रह्मा जी के समझाने पर उसने सभी देवताओं को मुक्त कर दिया और फिर सात्विक भाव से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। किंतु उसकी पत्नी वैरांगी शुद्ध हृदय वाली नहीं थी। उसने अपने पति से एक अत्यंत बलशाली पुत्र की मांग की, जो तीनों लोकों में अपना आधिपत्य स्थापित कर सके। वैरांगी की ये बात उसे अच्छी नहीं लगी, लेकिन फिर भी पत्नी के मोह में उसने वचन दे दिया और ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा, जिससे वैरांगी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम ताड़कासुर पड़ा। उसने अपने अत्याचारों से चारों ओर उत्पात मचा रखा था और तीनों लोकों में अपना आधिपत्य स्थापित करने हेतु उसने ब्रह्मा जी की तपस्या भी की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा और तब उसने अमरत्व का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो मेरे लिए भी संभव नहीं है, इसलिए कुछ और मांगो। तो उसने अपनी कुबुद्धि का उपयोग किया और कपट पूर्वक भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही उसकी मृत्यु हो, ये वरदान मांग लिया। उसने सोचा कि महादेव तो वैरागी हैं, तो उनका तो पुत्र होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, जिससे वो अपने आप ही अमर हो जाएगा, क्योंकि महादेव तो हर पल तपस्या में लीन रहते थे और वे कभी माता पार्वती से विवाह करने वाले नहीं थे, ऐसा उसने सोचा। उसने वरदान में महादेव के पुत्र के हाथों ही उसकी मृत्यु मांगी और ये सुनकर ब्रह्मा जी ने भी तथास्तु कह दिया। वरदान पाकर ताड़कासुर अत्यंत दुष्ट हो गया। अपने बल पर सभी देवताओं को हराकर उसने देवताओं का अधिकार छीन लिया। इतना ही नहीं, उन सबको स्वर्ग से भी निकाल दिया। अब ताड़कासुर के अत्याचारों से दुखी सभी देवता ब्रह्मा जी के पास आए और उनको लेकर वे श्री हरि विष्णु की शरण में गए। उनसे प्रार्थना की कि वे उन्हें इस दुखद स्थिति से बाहर निकाले। तब भगवान विष्णु ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि माता सती ने अपना पुनर्जन्म ले लिया है और वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म ले चुकी हैं। वे बहुत ही जल्द महादेव से विवाह करेंगी और उनके पुत्र से ताड़कासुर का विनाश होगा।
तत्पश्चात कुछ समय में ही माता पार्वती ने घोर तपस्या करके महादेव को प्रसन्न किया और उनसे विवाह किया। महादेव की अर्धांगिनी बनकर माता पार्वती ने एक पुत्र को जन्म दिया जो स्कंद यानी कार्तिकेय है। माँ पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय को तारकासुर के साथ युद्ध करने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए ये स्कंद माता का स्वरूप धारण किया था। स्कंद माता से युद्ध का प्रशिक्षण लेने के बाद कार्तिकेय को भगवान विष्णु ने सभी देवताओं का सेनापति घोषित किया और युद्ध में कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत कर दिया। स्कंद माता की कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। उनकी पूजा आराधना करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट होते हैं और जीवन में संकट दूर रहते हैं। स्कंद माता ममता बरसाने वाली देवी है। वे अपने भक्तों पर सदा अपनी कृपा रखती हैं। इसलिए आज के दिन उनकी विशेष रूप से पूजा आराधना करनी चाहिए। उनसे हमारे परिवार की सुरक्षा और संतान सुख की सुरक्षा के साथ साथ अपनी भक्ति की सुरक्षा हेतु भी प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय में चारों ओर माया का प्रभाव दिन प्रतिदिन फैलता जा रहा है। ऐसे में अपनी वैदिक सनातन संस्कृति को जीवंत रखना, उसे आगे बढ़ाना अत्यंत मुश्किल कार्य होता जा रहा है। तो आज के दिन हम माता स्कंद माता से यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमें ऐसी शक्ति और सद्बुद्धि प्रदान करें जिससे हम इस भौतिक संसार से मुक्त हो पाएं और जीवित रहते हुए अपने सनातन वैदिक धर्म का पालन करते हुए उसका प्रचार प्रसार भी कर पाएं और उसे अपने आने वाली पीढ़ी तक पहुंचा पाएं। असी भुल्लण हारे मां तू बख्श लई। असी भुल्लण हारे मां तू बख्श लई। असी भुल्लण हारे मां तू बख्श लई। असी तेरे सहारे मां तू बख्श लई। चंगे जा माड़े असी तेरे सहारे मां तू बख्श लई। वेखना अवगुण लाले चरनी मेर साडे ते पौमा करनी। वेखना अवगुण लाले चरनी मेर साडे ते पौमा करनी। तेरी अख दे तारे मां तू बख्श लई। असी तेरे सहारे मां तू बख्श लई। असी भुल्लण हारे मां तू बख्श लई। बख्श लई मां 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 बख्श लई। पंज तत्तां दा कड़िया बंदा ऐब गुनाह नाल भरिया बंदा। पंज तत्तां दा कड़िया बंदा ऐब गुनाह नाल भरिया बंदा। जे लोभ दे मारे मां तू बख्श लई। असी तेरे सहारे मां तू बख्श लई। चंगे जा मारे मां तू बख्श लई। असी भुल्लण हारे मां तू बख्श लई।
माए जे भुल चुक होई असी तेरे सहारे मां तू बख्श लई असी भुलण हारे मां तू बख्श लई चंगे जा मारे मां तू बख्श लई असी तेरे सहारे मां तू बख्श लई असी भुलण हारे मां तू बख्श लई असी भुलण हारे मां तू बख्श लई बख्श लई मां 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 बख्श लई। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा
सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी की।